الحقيقة في ولد فأما إذا وقف على أولاده دخلت لهم كلهم كذكر الطبقات الثلاث بدفع الولد كما في فتح القدير وكأنه للعرف فيه وإلا فالولد مفردا أو جمعا حقيقة في الصدر ومنها لو حلف لا يسير أو لا يشتري أو لا يفكر أو لا يستأجر أو لا يخالف والمال أو لا يقاسم أو لا يقاسم أو لا يكون ولدا لم يحدث إلا بالمباشرة ولا يحدث بالتوكيل لأنها الحقيقة وهو مجاز إلا أن يكون أنه لا يوكل ذلك الفعل كالقاضي والعبيد فحينئذ يحدث بالله وإن كان يباشر مرة ويوكل فيه أخرى فإنه يعتبر فيه على بلد قال في كم بعضهم وما يحدث منا النكاح والطلاق والخلع والاستشهاد. بس کرو. تنبیہ فی معراج الدرایا من الحظر والاباحہ. معراج الدرایا کی کتاب الحظر والاباحہ میں ہے. بتلا چکا آپ کو معراج الدرایا ہدایہ کی شرح ہے. ہمارے اصحاب شرمگاہوں کے معاملے میں بہت احتیاط کرتے ہیں سوائے ایک مسئلے کے. اس مسئلے میں احتیاط کے بجائے دوسری چیز کو ترجیح دی گئی. وہ مسئلہ کیا ہے؟ اگر بادی ہو دو شریکوں کے درمیان، اگر بادی مشترک ہے، ایسا کر سکتے ہیں کہ دو لوگ تین لوگ مل کر کے ایک بادی خریدیں، یعنی وہ بادی تینوں کی روٹی پکا دے، تینوں کا کھانا پکا دے. لیکن جو وادی مشترک ہوگی اس سے کوئی ایک فرد وتی نہیں کر سکتا، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ اجازت دے دیں ایک فرد کو کہ نہیں تیرے ہی لیے ہے، تب بھی اس کے لیے اس سے وتی کرنا جائز نہیں ہے. جب تک کہ اشتراک موجود ہے، شرکت موجود ہے، کسی بھی فرد کے لیے اس سے وتی حلال نہیں ہے. اگر بادی دو شریکوں کے درمیان ہو اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے اسے بادی پر اندیشہ ہے اپنے شریک کی طرف سے، یعنی بادی اس کے پاس رہے گی تو یہ فاسق و فاجر شخص ہے، جائز ناجائز کا لحاظ نہیں رکھے گا اور اس سے وتی کر لے گا، اور یہ مطالبہ کیا کہ اسے کسی عادل آدمی کے پاس رکھا جائے، انتوز علی ید عدل. تو رات کہاں گزارے؟ وہ کسی عادل اور نیک شخص کے یہاں رات گزارے، اس کے پاس نہ رہے. لا یجاب الی ذلک، اس شخص کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، قاضی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ہر ایک کے پاس وہ ایک دن رہے گی. پورا 24 گھنٹہ اس کے پاس، 24 گھنٹہ اس کے پاس. حشمتن للملک. حشمت کیا ہے؟ حشمت، حشمت نہیں. کسی کا نام ہوتا ہے کیا کہتے ہیں لوگ؟ حشمت اللہ. ہاں جی، عصمت. ہاں عصمت، اسی سے کیا حشمت. ہاں جی، احترام کے معنی ہے حشمت. تو حشمتن للملک، ملکیت کے احترام میں. تو یہ ملکیت کی آزادی ہے. کیا ہے؟ ملکیت کی آزادی، ملکیت کا احترام. جب وہ اس کا مالک ہے تو اس کا حق ہے کہ اسے اپنے پاس رکھے. دوسرے کے پاس کیوں رکھا جائے گا؟ اس تو ملکیت کو پابند بنانا ہے. ہر شخص اپنی ملکیت میں تصرف کرنے میں آزاد ہے. قاعدہ الاصل فی الکلام الحقیقہ. الاصل فی الکلام الحقیقہ. یہ سب الیقین لا یزول بالشک کے ذیلی قاعدے ہیں، ہے نا؟ تو حقیقی معنی یقینی ہے، مجازی معنی احتمالی ہے. لہذا سب سے پہلے کس کو اختیار کیا جائے گا؟ حقیقت کو. حقیقت کسی وجہ سے دشوار ہو جائے تب مجازی معنی اختیار کیا جائے گا. یہ جو باطنی فرقے ہیں یا قادیانی وغیرہ ہیں، لوگوں کو اسی راہ سے گمراہ کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کا یہ مجازی معنی مراد ہے، یہ باطنی معنی مراد ہے. کون معنی مراد ہے؟ باطنی.
तो हर लफ्ज का एक बातिनी माना उन्होंने तलाश कर रखा है। एक शिया को देखा तकरीर कर रहा था, कहा कि वो जो असर है, मगरिब है, इशा है, ये नमाजों के नाम नहीं, एक तो वक्त के नाम है। इसके नाम है, वक्त के नाम है। नमाजों के क्या नाम है? जोहर से मुराद मोहम्मद। जोहर का असल नाम क्या है? मोहम्मद। असर का असल नाम क्या है? अली। इसी तरह से पांचों नाम पंजतन पाक। और उसके खूब नारे तकबीर लोग बुलंद कर रहे थे जोश में आकर के कि असल नाम इन नमाजों का क्या है? ये। तो ये जितने भी बातिनी फिरके हैं, शिया हैं और दूसरे हैं, सब क्या करते हैं? नहीं, मजाजी माना। और मजाजी माना क्यों? हकीकी माना यकीनी है। और जब यकीन मौजूद है तो फिर एहतमाल को इख्तियार नहीं किया जाएगा। तो अल असल फिल कलाम अल हकीका। कलाम में असल क्या है? हकीकत है। हकीकत किसी वजह से हकीकत पर महमूल ना कर सके, तब उसके बाद मजाज को इख्तियार किया जाता है। अल असल फिल कलाम अल हकीका। कलाम में असल हकीकत है, और इस पे बहुत ज्यादा फुरुआत निकलते हैं। क्या निकलते हैं? नंबर एक, निकाह। निकाह के असल माने क्या है? वती करना। बल्कि वती करना भी असल माना नहीं है। असल माने है अज़म। क्या है? अज़म। पैवस्त हो जाना। क्या हो जाना? पैवस्त हो जाना। असल माने ये है। और इसीलिए चूंकि ये मफहूम ज्यादा पाया जाता है किसमें? वती में। इसलिए वती को निकाह कर दिया जाता है। जम का मफहूम वहीं ज्यादा पाया जाता है। अक्द इस जम का सबब है। क्या है? अक्द की वजह से मर्द और औरत आपस में मिलते हैं, तो इस मिलने का सबब है अक्द, इसलिए अक्द को भी निकाह कह दिया जाता है। तो निकाह के असल माने क्या आते हैं? जम, रात से मिलना। फिर इस मफहूम के अक्द पति को कहा गया, वहीं जम होना पाया जाता है। निकाह को कहा गया इसलिए कि वो जम का सबब है। बहरकैफ इनका कहना यह है कि निकाह का असल मफहूम वती है, हकीकी मफहूम क्या है? वती है। तो जो कुरान में कहा गया है वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम, ऐसी औरत से निकाह मत करो जिससे तुम्हारे बाप ने वती किया है। क्या है? ला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम। तो ऐसी औरत से वती मत करो जिससे तुम्हारे बाप ने वती की है। यानी बाप की मसनिया है, मनकूहा नहीं है। जैसे बाप की मनकूहा हराम है, ऐसे ही बाप की मसनिया भी हराम है। यानी बाप ने या बेटे ने इसके बरक्स किसी से जना कर लिया है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे? वो औरतें दोनों के लिए हराम हो जाएंगी। बाप ने जना कर लिया है तो औरत बेटे के लिए हराम है। बेटे ने जना कर लिया है तो वह औरत बाप के लिए हराम। जना के बाद इनमें से कोई उससे निकाह करना चाहे नहीं कर सकता। क्यों? एक दूसरे के लिए क्या है? वो हराम है। कुरान ने कहा वला तनकिहू मा नकहा, अब क्या है? आबाउकुम। तो वती मत करो उससे जिससे तुम्हारे बाप ने वती की है। इसमें क्या आ गया? चाहे मनकूहा से वती हो चाहे मजनिया से हो, दोनों क्या है? हराम हो जाएंगे। तो हनफिया के यहाँ आप जानते हैं मसला है कि हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाती है जिना की वजह से। किसकी वजह से? जिना की वजह से भी हनफिया के यहाँ हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाती है, जिना की वजह से भी, बल्कि दवाई जिना की वजह से भी। किसकी वजह से? दवाई जिना। यानी शहवत की निगाह से शर्मगाह को देख लेना, या शहवत के जरिए से हाथ से उसको छू देना, इन सब से भी हुर्मत साबित हो जाती है हनफिया के यहाँ।
अगर कोई ससुर अपने बहू को शहवत के हाथ से छू दे या अपनी बहू को जो है से वो जिना कर ले, तो वो बहू उसके बेटे के लिए हराम हो जाएगी। ससुर के लिए तो पहले ही से हराम है, अब वो बहू बेटे के लिए भी क्या हो जाएगी, हराम हो जाएगी। तो हुर्मत मुसाहरत हमने कहा कि हनफिया के नजदीक साबित हो जाती है जिना की वजह से भी, बल्कि दवाई जिना के जरिए से भी। वो इस्तेदलाल करते हैं इसी आयत से। इससे इस्तेदलाल करते हैं इसी आयत से, वला तनकिहू मा नकह आबाउकुम, बल्कि हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा भी यही कहते हैं। हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि दूसरे शौहर से वती कर ले। लेकिन दूसरे शौहर से निकाह करने क्या मतलब है, जौज कहा है ना उसको, यानी निकाह पहले हो चुका है, उसके बाद अब मसला किसका है, वती का है। वहां भी यही कहते हैं कि ना कहा किसके माने में है, वती के माने में है। वती इसका असल मफहूम है। सवाल यह है कि मनकूहतुल अब बगैर वती के हराम है, मनकूहतुल अब बगैर वती के हराम है। मतलब अगर बाप ने किसी औरत से निकाह कर लिया है, उससे वती उसने नहीं की है, तलाक दे दी उसने, तो ये बाप की मनकूहा बेटे के लिए हराम हो जाएगी, चाहे बाप ने उससे सोहबत की हो या सोहबत नहीं की हो। आप तो कहते हैं आयत में मुराद क्या है, वती। और यहाँ निकाह के जरिए भी आप हराम करार देते हैं, भाई इत्तेफाक हराम है, बाप की मनकूहा बेटे के लिए भाई इत्तेफाक हराम है। क्यों, इसकी दलील क्या है? जवाब यह है कि इसकी दलील इजमा है। ये कुरान की इस आयत से साबित नहीं है, बल्कि किससे साबित है, इजमा के जरिए साबित है। आगे ये बतलाया है कि चूंकि ये मसला कतई है, यकीनी है, इसलिए अगर कोई शाफई फैसला भी कर दे तो उसका फैसला नाफिज नहीं होगा। शाफई ये फैसला कर दे कि बाप की मजनिया हलाल है, तो उसका फैसला नाफिज नहीं होगा। क्यों, ये मसला क्या है, कतई है, यकीनी है। ज़ाब्ता यह है कि जो मसाइल मुज्तहद फी होते हैं, जो मसाइल क्या होते हैं, मुज्तहद फी होते हैं, उसमें काजी का फैसला राफ़े इख्तिलाफ होता है। क़ज़ाए काजी राफ़े इख्तिलाफ, काजी ने फैसला कर दिया तो अब वो इख्तिलाफ खत्म हो गया। मतलब सबको मानना जरूरी है, चाहे वो उसका नजरिया हो, चाहे उसका वो नजरिया न हो। लेकिन कब होता है ये, मुज्तहद फी मसाइल में। कहाँ, समझ रहे हो लुकमान? क़ज़ाए काजी क्या होता है, राफ़े इख्तिलाफ होता है। बहुत तफसील से आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उसूल इफ्ता में। हाँ, हाँ वाजिब हो जाता है मानना। काजी का फैसला क्या होता है, राफ़े इख्तिलाफ होता है। इसलिए कि अगर राफ़े इख्तिलाफ ना हो तो फिर कोई फैसला जो है बाकी नहीं रह पाएगा। हर फैसला क्या रहता रहेगा, टूटता रहेगा। एक काजी आएगा, दूसरा फैसला करेगा, उसके खिलाफ वो अपील करेगा। फर्ज कीजिए उसकी राय इसके खिलाफ हो तो वो फिर फैसला करेगा, तीसरा इसको उलट देगा, चौथा उसको उलट देगा। बेचारा जो है, जैसे हिंदुस्तान के जो है वो अदालतें हैं, जिंदगी भर केस ही लड़ता रह जाएगा। नहीं, इसलिए कि सब उलट पलट करते रहेंगे। एक आएगा तो उसके मुताबिक, दूसरा आएगा तो इसके मुताबिक, इसे ये तो बड़ा इंतशार होगा ना। इसलिए ज़ाब्ता बतलाया गया है कि काजी का फैसला क्या होता है, मुज्तहद फी मसाइल में। किसमें, मुज्तहद फी मसाइल में। इसको कहते हैं, लेकिन ये मनसूस है। क्या है, मनसूस है। बाबा मनसूस कैसे हो गया? अगर मनसूस होता तो इख्तलाफ ही क्यों होता? इख्तलाफ होने का मतलब ही है कि मनसूस नहीं है। एक मुज्तहिद इख्तलाफ कर रहा है, हमारा शुमा नहीं इख्तलाफ कर रहे हैं, मुज्तहिद इख्तलाफ कर रहे हैं। एक नहीं, दो दो मुज्तहिद इख्तलाफ कर रहे हैं। इमाम मालिक का भी इख्तलाफ है, इमाम शाफई का भी इख्तलाफ है। आपका ये कहना कि नहीं साहब, ये निकाह वती के लिए असल है इसलिए मनसूस है, इसी में इख्तलाफ है कि निकाह वती के लिए असल है या निकाह का शरई मफहूम क्या है, अक्द है। शरई मफहूम क्या है, लुगत नहीं बल्कि शरई मफहूम लीजिए, तो निकाह का शरई मफहूम क्या है, अक्द है। हाशिये में लिखा हुआ है
یہ مختار صاحب منار ہیں तबान लिफ़क़्र इस्लाम, लेकिन आमत मशाइख व जमहूर मुफस्सिरीन अला अन्ना निकाह मज़कूर फिल आया वल अक़्द. लीजिए साहब, खुद हनफिया में से क्या है, आम तौर पे मशाइख और जमहूर मुफस्सिरीन क्या कहते हैं, मज़कूर आयत में निकाह से मुराद क्या है, अक़्द है. तो कहाँ ये मंसूस रहा, ये तो क्या बन गया, मुज्तहिद फी बन गया. और जब मुज्तहिद फी मसला है तो अगर कोई कादी इसके खिलाफ फैसला कर दे तो उसका फैसला नाफिज होगा. अल अस्ल फिल कलाम अल हकीका, कलाम में असल हकीकत है. इस पर बहुत से ज्यादा मसाइल निकलते हैं. उनमें से एक निकाह है वती के लिए, और इसी पर महमूल किया जाएगा अल्लाह ताला कौल वला तनकिहु मा नकहा आबाउकुम मिनन निसा. लिहाजा बाप की मजनिया हराम है जैसे कि बाप की बीवी हराम है. हलीला बीवी, तो जैसे बीवी हराम है, सौतेली माँ हराम है, ऐसे ही मजनिया भी क्या है, हराम. वलिदा लौ क़ज़ा शाफ़ई बिहिल्लिहा, अगर कोई कादी उसके हलाल होने का फैसला कर दे, ये फैसला नाफिज नहीं होगा किताबुल्लाह की मुखालफत की वजह से. मैंने कहा ये सही नहीं, ये मनसूस नहीं है, बल्कि क्या है, मुज्तहिद फी. बरखिलाफ फैसला करना ममसूसा के हलाल होने की है. ममसूसा, हमने कहा कि दवाई जमा की वजह से भी हुर्मत साबित हनफिया के यहाँ हो जाती है. तो अगर किसी ने दवाई जिना का इर्तिकाब कर लिया है और कोई शाफई काजी उसके हलाल होने का फैसला कर दे तो फैसला नाफिज हो जाएगा. फर्क यही है कि गोया कि ये इज्तिहादी मसला है. ममसूसा की हिल्लत क्या है, ममसूसा की हिल्लत और हुर्मत एक इज्तिहादी मसला है, और मजनिया की हुर्मत एक मनसूस मसला है. यही फर्क बतलाया है. ये फर्क मज़कूर है हमारी शरह के किताबुल ज़िहार में. यानी आप बहरुल राइज़ देखा कीजिए, इसलिए बार बार कहते रहते हैं. किताब तो आप लोग उलाटते नहीं बहरुल राइज़ को. वह हुर्मतुल माक़ूद अलैहा बिला वत्यिन बिल इज्मा, और माक़ूद अलैहा की हुर्मत वती के बगैर ये साबित है इज्मा के जरिए. हमने बतलाया आपको, माक़ूद अलैहा महज अक्द की वजह से भी वो औरत बेटे के लिए हराम हो जाती है. वलौ कालत ले अमतिही और मनकूहतिही, अगर अपनी बीवी या अपनी बादी से कहा, इन नकाहतों की, अगर मैंने तुझसे निकाह किया तो तुझे तलाक है या तू आजाद है, यही ना कहेगा. अगर मैंने तुझसे निकाह किया, अब ज़ाहिर है बीवी से निकाह करने क्या मतलब है, यहाँ तो करीना मौजूद है. एक मुराद क्या है, वती है. बीवी से निकाह करने का मतलब, निकाह तो पहले से मौजूद है, बादी पहले ही से इसके अक्द में है. और अगर अपनी बीवी से या अपनी बादी से कहे, अगर मैंने तुझसे निकाह किया, फाल अलवती, तो ये महमूल होगा वती पर. लिहाजा अगर बादी से निकाह कर ले आजाद करने के बाद, या बीवी से निकाह कर ले जुदा कर देने के बाद, तो हानिस नहीं होगा. महज निकाह से हानिस कब हानिस होगा, जब वती करेगा इन दोनों से. वमिनहा लौ वक़फ़ अला वलदिही, उसी में से एक मसला यह है कि अगर वक्फ किया अपने वलद पर, किस पर, अपने वलद पे. वलद का लफ्ज इस्तेमाल किया. वलद का लफ्ज बेटे के लिए हकीकत है, पोते के लिए मजाज है. बेटा मौजूद है तो पोता मुराद नहीं होगा, बेटा मौजूद नहीं है तो मुराद पोता होगा. लौ वक़फ़ अला वलदिही, अगर वक्फ किया है अपने बच्चे पर, या वसीयत की है जैद के बच्चे पर के लिए, तो उसमें उसके पोते दाखिल नहीं होंगे अगर सुलभी बेटा मौजूद है. सुलभी ही,
تو حقیقی بیٹا موجود ہے، سلبی بیٹا موجود ہے، پوتا اس وصیت میں یا اس وقت میں داخل نہیں ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَد، اگر اس کا سلبی بیٹا موجود نہ ہو تو پوتا مستحق ہوگا۔ فقہا کا اختلاف ہے پوتا یا پوتی کے سلسلے میں، فی ولد البنت، اس کے سلسلے میں، پوتا کے سلسلے میں، ہاں کیا کہیں گے اس کو؟ نواسا، ناتی، ہاں نواسا اور ناتی، ناتی کہاں جاتی ہے؟ اگر فقہا کا اختلاف ہے پوتے کے کیا نواسے کے بارے میں، ظاہر الروایہ یہی ہے کہ یہ داخل نہیں ہے، داخل نہیں ہے۔ وصحیحا، اور اس کی تصحیح کی گئی ہے، جو مسئلہ ظاہر الروایہ پہ ہے اسی کی تصحیح کی گئی ہے، اسی پر فتویٰ دیا ہے۔ اگر واقف کا کوئی بچہ پیدا ہو جائے، کیا پیدا ہو جائے؟ بچہ پیدا ہو جائے، پوتا تھا، بیٹا مر گیا تھا، پوتا تھا، پھر اس کا بھی بیٹا پیدا ہو گیا۔ اگر واقف کا کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو پوتے سے اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ حقیقی مفہوم اب ہو گیا، ممکن ہو گیا۔ بیٹا کہا ہے نا، ولد کہا ہے، بیٹا آ گیا، اب بیٹا نہیں تھا تو پوتا مراد لیا گیا تھا، اب بیٹا آ گیا تو پوتا ختم۔ اس لیے کہ ولد کا لفظ حقیقت ہے سلبی بیٹے کے سلسلے میں، وہذا فی المفرد، یہ مسئلہ مفرد کا ہے، یعنی ولد کا، اولاد کا نہیں۔ کیا ہے؟ اگر اولاد استعمال کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اولاد، یا 3 مرتبہ جو ہے ولد استعمال کرتا ہے، ابن ولد، ولد ابن ولد، ابن ولد، ابن ولد، یہ 3 مرتبہ استعمال کر دے گا تو پوری نسل آ جائے گی اس کی۔ کیا آ جائے گی؟ پوری نسل، یعنی بیٹا، بیٹی، نواسا، نواسی، سب اس میں آ جائیں گے۔ تو لفظ اولاد میں اور ولد میں اگر اس کو کیا ہے، ابن کی طرف مضاف کر دیا گیا ہے 3 مرتبہ، تو پوری نسل آ جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے مفرد کا۔ اگر وقف کرتا ہے اپنی اولاد سے تو اس میں پوری نسل داخل ہو جائے گی، جیسے کہ 3 طبقوں کو ذکر کرنا ولد کے لفظ کے ساتھ، یعنی ولد ابن ولد ابن ولد، وَكَأَنَّهُ لِلْعُرْفِ فِيهِ، گویا کہ جو مراد لیا گیا ہے عرف کی وجہ سے، ورنہ تو ولد چاہے مفرد ہو یا جمع ہو، یہ حقیقت ہے سلبی بیٹے کے سلسلے میں۔ اسی میں سے یہ مسئلہ ہے لو حلف لا یبی ولا یشتری ولا یوجر لا یستاجر او لا یصالح عن مال او لا یقاسم او لا یخاصم او لا یضرب ولدہ لم یحنس الا بالمباشرہ، اگر قسم کھا لے کہ وہ بیچے گا نہیں، خریدے گا نہیں، کسی کو اجرت پہ نہیں دے گا، کسی کو مزدور نہیں رکھے گا، مال کے بدلے صلح نہیں کرے گا، تقسیم نہیں کرے گا، فریق نہیں بنے گا یا مقدمہ نہیں کرے گا، اپنے بیٹے کو نہیں مارے گا، مگر براہ راست ان کام کے انجام دینے کی وجہ سے۔ ہاں کب؟ براہ راست ان کام کو انجام دے، کہہ رہا بیچے گا نہیں، خریدے گا نہیں، کب حانث ہوگا؟ جب خود بیچے، خود خریدے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وکیل کو دے دیا کہ جاؤ خرید لاؤ، کہ اس کا خریدنا نہیں پایا گیا، یہ مجازی مفہوم ہے۔ کیا ہے؟ مجازی مفہوم ہے۔ حقیقی مفہوم کیا ہے؟ خود خریدنا، خود بیچنا۔ لا یقاسم، تقسیم نہیں کرے گا، کیا نہیں کرے گا؟ تقسیم، یعنی کوئی مال مشترک ہے، ایک بھائی بٹوارہ کے لیے کہہ رہا ہے کرنا نا، بالکل نہیں، میں تو تقسیم کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ خود تقسیم نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آ کے تقسیم کر دے، اس پہ راضی ہو جائے تو وہ حانث نہیں ہوگا۔
ला युखासिम, कसम के माने क्या है? यानी अदालत में कोई मुकदमा ले जाए। क्या करे? अदालत में कोई मुकदमा ले जाए, ये मतलब। खुद ले जाएगा तो हानिस होगा, वकील के जरिए मुकदमा करा देगा तो हानिस नहीं होगा। अपने बेटे को मारेगा नहीं, इन तमाम सूरतों में नहीं हानिस होगा मगर बराह रास्त करने की वजह से। और वकील बनाने की वजह से वह हानिस नहीं होगा, इसलिए कि मुबाशरत ही हकीकी मफहूम है, लिअन्नहा हिय अल मुबाशरा वह हुआ मजाज। तवकील क्या है? मजाज है। इल्ला ये कि उस तरह के लोग बराह रास्त इस काम को न करते हों। क्या है? तो आला में यार है, स्टेटस क्या है इसका? आला है, वो खुद मार्केट नहीं जाता है, खरीदने बेचने के लिए वो खुद मार्केट में नहीं जाता है, उसके लोग जाते हैं। वो खुद कहीं केस लड़ने नहीं जाता है, क्या है, उसके लोग जाके लड़ते हैं, तो उसका स्टेटस क्या है? बहुत हाई फाई। मगर ये कि उस तरह के लोग बराह रास्त इन कामों को न करते हों, जैसे काजी, अमीर, फहीन यहनुस बिहिमा, इस वक्त दोनों के जरिए से हानिस हो जाएगा। दोनों हकीकत है, खुद करेगा तो भी क्या है, हकीकत है, क्योंकि आमतौर पर खुद करता नहीं है, दूसरे से करवाता है। दूसरे से करवाना भी क्या है उसके हाथ में, हकीकत ही है, मजाज नहीं है, क्या है वो भी, हकीकत ही है। समझ रहे हैं अबू जाफिर साहब? हाँ। तो अब इसमें मदरसे के असातिज़ा भी शामिल हो जाएंगे? नहीं, वो भी आमतौर पर नहीं करते हैं। नहीं, काजी से कम होते हैं क्या मदरसे के असातिज़ा? नहीं, वो भी मार्केट नहीं जाते हैं? जाते हैं, हमा शुमा चले जाते हैं, छोटे मोटे लोग हैं। हम तो अपना काम खुद से करते हैं। वह इनकान युबाशिरुहु मर्रतन, और अगर कभी खुद ब खुद करता हो, मुबाशरतन यानी ये मज़कूरा काम क्या करता है, खुद करता है, कभी वकील भी बना देता है, तो इसमें एतबार किया जाएगा गालिब का। गालिब क्या है, वकील बनाना है या खुद से करना है? अगर खुद से करना गालिब है, खुद से करेगा तो हानिस हो जाएगा, वकील बना देगा तो हानिस नहीं होगा। काला फिल कर्ज बादहू, कर्ज में इसके बाद लिखा है, वमा यहनुसु बिहिमा, जिन चीजों में दोनों से हानिस हो जाता है, यानी बराह रास्त करने से भी और वकील बनाने से भी। क्या क्या है? अन निकाह, निकाह खुद कराए दूसरे से करे, तलाक खुद दे दूसरे से दे। इसलिए कि इन तम ये जो मामले होते हैं, बीच में जो वकील होता है उसका कोई काम नहीं होता, बस मुअब्बिर होता है। क्या होता है? वो रसूल होता है, कासिद होता है, उस पर कोई जिम्मेदारी लौट के नहीं आती है, बरखिलाफ वकील बिलबय के कि उसी पे जिम्मेदारी लौट के आती है। जिसमें दोनों सूरतों में हानिस हो जाता है, यानी वकील से कराए या बराह रास्त करे, निकाह, तलाक, खुला, इत, किताबत, सुलह अन दम अमद, दम अमद की तरफ से सुलह करना। दम अमद का बदला असर क्या है? एहसास। दम अमद में दियत नहीं है, दम अमद में क्या है? हाँ, एहसास। इल्ला ये कि मकतूल के औलिया सुलह कर लें। अब सुलह किसी भी कर सकते, उससे पाबंदी नहीं होती कि नहीं दियत पे सुलह करें। दियत पे नहीं हो, डायरेक्ट सुलह है, वो कितना भी मुतालबा करें उनको देना होगा, और कातिल ही को देना होगा। यानी इसमें आकिला का मसला नहीं होता है, मसला किसका होता है? कातिल का। कातिल जो है उससे इंतजाम करे, चाहे भीख मांगे, कुछ भी करे। तो सुलह दम अमद, हेबा, सदका, कर्ज देना, कर्ज लेना, गुलाम को मारना। कह दिया गुलाम को नहीं मारूंगा मैं, कसम खा लिया है, चाहे खुद मारे चाहे दूसरे से पिटवाए।
ज़बह करना, इमारत बनाना, चाहे खुद से बनाए चाहे दूसरे से बनाए, खयाता सिलना, ईदा वल इस्तेदा वदियत पे रखना, वदियत पे रखने को चाहना, यानी क्या बन जाए, मुदा अमीन बन जाए, एआरा इस्तेआरा मंगनी पे देना, मंगनी पर लेना, व कज़ाउद्दैन कर्ज अदा करना, उस पर कब्जा करना, किसी को पहनाना, किसी के सामान को उठाना लादना, अलहमल बार बरदारी, क्या देख मैं अपनी गाड़ी पे तेरा सामान नहीं रखूंगा, मैं अपनी गाड़ी पे तेरा सामान, कसम खा ले अगर रखा तेरा सामान अपनी गाड़ी पे तो फलां के लिए तलाक है या मेरे पर फलां जिम्मे है। तो हानिस हो जाएगा, चाहे उससे रखे चाहे दूसरे से रखवाए, इंतहा, बस।